was your experience? Nice. Did you enjoy there? Yes. Okay, you play on Mala Setu bridge? Yes. Okay, Kunti Mala Setu bridge. Kunti Mala Setu. Bridge और सेतु तो एक ही होता है ना? Okay, what did you do in the beach? Elephant is big and bird is Okay, पहले मुझे बताओ बीच पे क्या देखा आपने? What did you see on the beach? ABCD. Okay, you did ABCD. And did you play with sand? Yes. I threw pebbles in the Ganga. Okay, river Ganga. Okay, so river Ganga is very large, na? It is the largest river in India. River Ganga is the largest river. So, what is the name of largest river in India? Ganga. Very good. And from where Ganga originated? कहाँ से आती है गंगा? गंगा ऊपर से आती है. Yes, ऊपर से आती है from Himalaya ranges. Gangotri is the origination from the Ganga. Okay. और फिर कहाँ जाती है? कहाँ जाके मिल जाती है? यहाँ जाके मिल जाती है. Sea में. और तो sea में चली जाती है. Yes. So where are you? Where are you in? Where are you now? Now I'm in the car. Car. And where is the car? Car is moving on Rishikesh. Yes. Rishikesh roads. Car is moving on. Rishikesh roads. Right. So did you see mountain in the Rishikesh? Yes. Okay. Did you like the mountains? Yes. Okay. But what is the mountains? So mountains are the hills which are very high. So I cannot climb. No, you cannot climb. You are very little. One day you will climb the mountains. Mommy and Ivanka will go for the hiking. Daddy will also come with us. Okay? Yes. So can we take Daddy with us? Yes. Okay. Then what will you do with Daddy and Mommy? Climbing. Climbing. Okay. And play in the mountain playground. Okay. Do mountain have playground? I don't think so. No, I don't play. You also don't think so? Okay. Okay. If you want to play, na, you can also play on the mountains, but you should be very careful. I don't play. हाँ, अनिका आराम से अपना पानी पीते पीते सो गई है पीछे सीट पे. बहुत ज़्यादा थक गई है. खूब मस्ती करी है बीच पे इसने. थ्रू दैट जेपी से तो एक्चुअली इस बीटल आश्रम से एक किलोमीटर पहले हमें कार पार्किंग में अपनी कार को पार्क करना पड़ा, क्योंकि वहाँ तक कार नहीं जाती है. वहाँ पे या तो आप वॉक करके जा सकते हो या आप स्कूटी से या बाइक से जा सकते हो. हाँ, इस ब्रिज का व्यू बहुत अच्छा है. एक्चुअली इस तरफ इसके गंगा है. गंगा का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखा है इस टाइम. इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. और ये बीच में ना, गंगा के बीच ये पत्थरों का ये आइलैंड जैसा ये क्रिएट हो रखा है. एवरीथिंग इज़ नेचुरल एंड सो मच ब्यूटीफुल. ऐसी चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी चाहिए. यू नो, ऐसी रिलीजियस प्लेसेस पे इतने सारे पिलग्रिमेज आते हैं. इतने सारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता हमारे आसपास होती हैं. You woke up. Where are you going? You are going to see Beatles ashram? Yes. Okay. I'm so having fun in Daddy's Godi. You are having so much fun in Daddy's Godi. Okay, enjoy the Godi ride. I think you can walk now. We have your shoes. Do you want to walk? Do you want to walk? No? Are you tired? I don't think you are tired. And my shoes. What is this? Ved Niketan Dham. It's also an ashram, one kind of ashram, na? Ved Niketan Dham. Okay. यहाँ पे ऋषिकेश में आश्रम्स बहुत सारे हैं ना. It's a holy place after all. So what we can expect from here? Look at the view of that
bridge, looking so nice, and the river Ganga is also being there. Nice. That's cool. Anika and Daddy are having so much fun together. I think they forget to take Mama with them. हे गाइस, हाय। अभी तक का अपडेट ये है कि हम उस बीच से वापस आ गए थे। लगभग 2:30 बजे हम उस बीच से वापस आ गए थे। 11:30 बजे हम वहाँ पे पहुँचे थे। उसके बाद हम आए हैं काफ़ी घूमते फिरते बीटल आश्रम। अनिका एंड डैडी मुझे छोड़ के आगे निकल गए, बट वी आर नॉट अबाउट टू रीच। आई थिंक ये 4 बजे तक बंद हो जाता है। लेट्स सी दैट वी आर अवेलेबल और नॉट। ओके, सो लेट्स गो अहेड। 150 रुपीज़ यहाँ पे इंडियंस के लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए 75 है, स्टूडेंट के लिए सिर्फ 40 रुपीज़ है। शिव 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 शंभो, शिव 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 हाँ तो गाइज, हम बीटल आश्रम देखने तो गए थे, लेकिन वहाँ पे 4 बजे तक का टाइम था। और मतलब उस टाइम फिर हम अनिका के साथ फिर अंदर जाना प्रेफर नहीं कर रहे थे कि 5-10 मिनट ही बचे थे 4 बजे तक जाने में। एक्चुअली उसका बीटल आश्रम नाम इसलिए पड़ा था कि एक बहुत फेमस बैंड है बीटल, जो कि वहाँ कुछ टाइम रुका था। उन्होंने कुछ अपने गाने वगैरह लिखे थे, तो बस इसलिए इसका नाम बीटल आश्रम रख दिया था। अदरवाइज वो जगह जो है, वो मेन उसका जो नाम है वो है चौरसिया कुटिया। अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड और थोड़ा फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम गए थे, ये है राम झूला। राम झूला से गंगा का व्यू बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हम झूले के साथ चल रहे हैं, लाइक गंगा के साथ चल रहे हैं, क्योंकि वो झूला धीरे धीरे हिलता रहता है। प्लस वहाँ से जो उसका सनसेट व्यू था वो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप वहाँ जाओ तो सनसेट व्यू राम झूला या किसी मतलब ब्रिज से देखिएगा, या फिर डायरेक्टली भी देख सकते हो। तो गंगा के ऊपर जो सन की जो शेडो बनती है, इट्स रियली नाइस। मतलब आपका मन करेगा कि उसे थोड़ी देर खड़े होकर देखो, मतलब देखने लायक व्यू था। और फिर हमने उसके बाद गए थे अपने मतलब एक तरीके से कह लो वो हमारा लंच ही था, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी हो गया था और हम बीच में भी काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें खाते रहे थे। तो हम शाम के टाइम ही हमने 5 या 6 बजे चोटी वाला रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया था। फिर उसके बाद हमारा प्लान था कि हम गंगा आरती पे जाएंगे। ये पानी चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि हमारा ब्रिज चल रहा है। देखो अनिका, देखो, है ना, वहाँ पे देखोगे तो तब लगता है कि ब्रिज चल रहा है उधर उस वाले रोप पे। हाँ, रोप को देखो, देखो हमारी रोप ऊपर जा रही है, लेकिन ये पानी नहीं चल रहा, ये हमारी ऊपर एक तरीके से ऊपर से रोप जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं। ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं इसको, कि हम ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 ट्रेन मूव कर रही हैं, एक ट्रेन रुकी हुई है, दूसरी ट्रेन मूव कर रही है, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन मूव कर रही है। मतलब हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऐसा फील होता है कि हम भी मूव कर रहे हैं। चोटी वाला रेस्टोरेंट यहाँ का फेमस है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे लंच या डिनर कर सकते हो। हाँ तो गाइज, अब बज गए हैं शाम के 6:15 और हम आ गए थे गंगा आरती के जगह पर। ये हमने परमार्थ जो आश्रम है उधर की तरफ से हमने ये गंगा आरती देखी थी। तो वहाँ पे क्या होता है, चेयर्स लगा दी जाती हैं और कुछ लोगों का ये होता है कि मतलब कुछ वीआईपी लोग होते हैं जो अपनी तरफ से आरती करवा रहे होते हैं, तो उनको आगे की सीट्स दे दी जाती हैं। वो दूसरी तरफ वहाँ पे बैठे हुए होते हैं और एक तरफ लोगों के लिए चेयर्स लगा दी होती हैं। एक ब्रिज होता है, उसके ऊपर भी लोग खड़े होते हैं। यहाँ पे काफ़ी सीढ़ियाँ होती हैं, वहाँ पे भी लोग बैठे होते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा माहौल बन जाता है। तो आप गंगा आरती यहाँ पे आओ तो ज़रूर अटेंड करना। ये अनिका और डैडी हैं, ये भी अपना गंगा आरती का सामान लेकर आए हैं। मतलब जय हनुमान का
हाँ तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ पे गंगा आरती हो रही है। गंगा आरती इतनी ज़्यादा सुंदर थी, लाइक देखने में इतना ऐसा लग रहा था जैसे सच में मतलब भगवान प्रकट हो गए हैं। इतना ज़्यादा पवित्र स्थान बन गया था ये गंगा जी का किनारा जहाँ से उनकी आरती की जा रही थी। हमने ये परमार्थ से करा था, परमार्थ आश्रम की तरफ से। तो परमार्थ वाला का जो घाट है ना, वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग थे, लेकिन सबने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रखी थी थोड़ी थोड़ी, और मास्क भी लगाया हुआ था। बाकी डिपेंड करता है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है अगर आप ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना चाहते हो या नहीं। हम इतनी दूर आए थे तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा रिस्क ले ही लेते हैं, और हम वहाँ पर चले गए। मतलब गंगा आरती का जो टाइम था वो बहुत शाम को 5:30 या 6 बजे शुरू हो जाती है वो, और फिर उसके बाद 1 से 1.5 घंटा तक आरती वहाँ पे लोग करते हैं। वहाँ पे एक थोड़ी भजन संध्या जैसा माहौल बन जाता है, और साइड में गंगा जी जो बह रही होती हैं। मतलब एक इतनी अच्छी फीलिंग आती है शाम के टाइम पे। आई रियली रिकमेंड दैट अगर आप ऋषिकेश या हरिद्वार ऐसी किसी जगह जा रहे हो तो गंगा आरती ज़रूर करें। और बाकी अगर आज का आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमको सपोर्ट करिएगा। इसी के साथ हम आज का व्लॉग एंड करते हैं। So thank you, bye bye, see you in next vlog.